खैर, तो मसला ये हो गया है कि मेरी आँखों में एक्सट्रीम पेन है एंड किताब भी नहीं है हमारे पास। इस मोमेंट पर मेरी दिमाग ख़राब हो चुकी है क्योंकि अचानक से मेरी विजडम टीथ निकल रही थी। सो आई फील लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, बस एक और पनौती ना आ जाए एग्ज़ाम के टाइम में। एंड हाउ पैथेटिक इज द सिचुएशन कि आई एम ब्लॉगिंग एट दिस मोमेंट। Hello everyone, it has been a while and today I will be sharing with you my ordinary life turning tumultuous. कुछ भी प्लान नहीं था. I was living a normal life until the last fraction of the video जहाँ पर चीज़ें difficult and funny हो गई at the same time. So with my basic morning routine, wherein today I decided to make a rice water toner inspired by my favorite beauty influencer. Then I had a black coffee क्योंकि काफ़ी पढ़ाई करनी थी और आई चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था. थोड़ी देर रिविजन के बाद आई गॉट रेडी, पर हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि आई वॉज 6 minutes लेट एंड अब डॉक्टर अगले थर्सडे आएंगे, विच वॉज अ सैड लक. आई रिटर्न एंड मसाज माई फेस विथ आइस. आई जनरली डू नॉट प्रेशराइज माई सेल्फ टू स्टडी. तो आज मन किया कि रूमी की पोएट्री से इंस्पायर्ड एक पिक्चर बनाई जाए एंड दिस हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेशली फॉर पीपल हु हैव स्टडीड हिज लाइफ. दिस इज़ द डांस of Darwish which glorifies God and aims to seek spiritual perfection. Books have it कि ये रूमी ने स्टार्ट किया था, but it was actually our beloved Shams of Tabriz. And in his words, your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. In the evening, I usually brisk walk for an hour and it kind of detaches me from the world, wherein I seek answers to the questions like, what if I achieve everything I ever wanted? Will I stop being aspirational or will I pin down myself in an inescapable rat race? But then I choose to enjoy the present because I know कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता. So I must be always ready to accept failures, for even success becomes monotonous when it is repetitive. फिर आती है हमारी पढ़ाई की बारी, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी 3 दिन बचे हैं, तो आई हैव इनफ टाइम टू रिवाइज. पढ़ते पढ़ते एक फेज़ आ जाता है जब आपको पता सब कुछ है पर आंसर शीट में कुछ लिखने का मन ही नहीं करता, बिकॉज यू आर बोर्ड ऑफ एनकाउंटरिंग द सेम थिंग ओवर एंड अगेन. These are those days wherein you need to have a clean space for a clear mind and हर दिन ऐसे ही कबाड़ा हो जाता है. So today I devised a creative plan. Firstly I arranged all my books and pouches and kept it aside. कुछ किताबों में तो धूल भी जम गई थी. Now I used this box and cut out the projecting pieces. In this I would adjust my mini boxes, mini books, diaries and novels, and the side portion would cover my medicine, a case of Vaseline, especially those miniature items that are the reason to this chaotic space. It had a clean look, but then I decided to add an enclosed wall to it to keep the comb, face wash and stuffs. And here's the final look. Thank God, now I can study without freaking out at the cluttered view. Later that afternoon I drew out the toner that I made and हमें बहुत डर लग रहा था because I wasn't sure if this would suit my skin type, but to my amazement it plumped up my skin just like any other friendly toner. हैप्पी होकर हमने अपना कंफर्ट फूड बनाया. हमारे बिहार में इसे साबुदाने की खिचड़ी बोलते हैं, पर जिसकी रेसिपी पोहे वाली होती है. एंड इसी के साथ हमने ये दिन भी बर्बाद कर दिया. पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अब शुरू होगा पनौतियों का सिलसिला. As you might have known that हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं and the worst thing that can happen at this time is the exponential rise in my eye strain. So if you're not able to see my long videos anymore, that is not because of my procrastination, that is only because of so much struggles I am going through recently. खैर, तो मसला ये हो गया है कि मेरी आँखों में एक्सट्रीम पेन है एंड किताब भी नहीं है हमारे पास. एंड नाउ आई एम क्लूलेस
क्योंकि अब हमें बिल्कुल नहीं पता है कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हमें कल परसों सिलेबस ही पता चला है ईवीएस का। अभी 7:48 हो रहे हैं एंड मेरे पास लेजिट कोई मटेरियल नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट कि हम यूट्यूब के वीडियोस देखकर अपना पेपर लिखें, क्योंकि आई नेवर फाइंड यूट्यूब वीडियोस टू बी वेरी सफिशिएंट फॉर माई आंसर राइटिंग। इस मोमेंट पर मेरी दिमाग खराब हो चुकी है क्योंकि अचानक से मेरी विजडम टीथ निकल रही, मेरी विजडम टूथ भी आ रही है और मुझे अब बोलने में भी दिक्कत हो रही है और मेरे सर में भी इस साइड बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करते हैं कि कोई अच्छी सी मूवी देखकर सोने चले जाते हैं। इस लड़की को सुबह सुबह भूख लगी है। I don't know guys if you can actually figure out the difference between this side of my cheek and this side of my cheek, and now it is quite relieved, but it is still a challenge for me to have my meals, have a proper meal. I guess I will have to depend upon the liquid sort of meals and diet for the day. जितना भी अभी तक पढ़े हैं अभी तक जिंदगी में, उसे मिलाकर एक आंसर लिखा जाएगा, गाने नहीं लिख के आने हैं, ठीक। सो आई फील लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, बस एक और पनौती ना आ जाए एग्जाम के टाइम। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू डिच माई सो कॉल्ड लिक्विड वाला डाइट एंड मेरे को दाल वाले पराठे खाने का मन हो रहा है। तो सेमेस्टर 2 में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड पता नहीं कैसे मेरी रिस्ट मुड़ गई एंड रात तक आई थॉट इट्स अ माइनर इंजरी। सुबह में इट वॉज पेनिंग लाइक हेल, मेरी वाट लग गई एंड मेरे को उस दिन एक स्क्राइब की जरूरत पड़ गई थी। आई वेंट टू द साउथ कैंपस वाला ऑफिस and they said that no, without x-rays, without MRIs, you don't get the option of writing an exam. So I was just weeping and I was in tears and ma'am was really very, she felt really bad for me. I wanted to desperately give the exam क्योंकि मेरा उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ था। So for the scribe I called my roommate Simu, who is from the BSc का background, which is the botany, BSc botany कर रही है वो। She ran for me the entire time. She was there for me. She motivated me and then she said that don't worry, I'm there, I'll write, I'll do it. मेरे को उस पेपर में आउटस्टैंडिंग आया था जिसके लिए हम पढ़ाई किए थे, मेहनत किए थे। हाँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट कि जितना लिखना चाह रहे थे उतना लिख नहीं पाए, बट जितना भी लिखे दैट वाज एनफ टू फेच मी मार्क्स। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। मेरा रोल नंबर लिस्ट में तो था, बट एज आई वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल वहाँ पर समवन एल्स वॉज सीटेड, सो आई रश टू द एडमिन ऑफिस। दे अलॉटेड मी अनदर रूम, बट फिर क्वेश्चन पेपर सेकेंड सेमेस्टर का दे दिया गया एंड देन आई वॉज पिस्ड बाय नाउ। गाइज आई एम रशिंग अगेन क्योंकि हम अपना बैग दूसरे ही बिल्डिंग में भूल चुके हैं। And how pathetic is the situation कि I'm vlogging at this moment. Yes, that's it. I have finally reached home. और अब जा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ने वाला है पूरा रूम में। तो I was like कि this is how the management works and stuff and that. But फिर I ran to the admin again. And इस बार सर ने बोला चेक कि आज आपका एग्जाम है कि नहीं।
And when I did, I was feeling so foolish. I made a fool out of me and I relied on someone else's date sheet. So, आज मेरा एग्जाम नहीं है, कल एग्जाम है. 11 जून को नहीं है, 12 जून को एग्जाम है. बट आई मस्ट से मेरे एडमिन के ऑफिसर्स या टीचर्स इतने अच्छे हैं. आई वॉज पैनिकिंग, आई वॉज फीलिंग, you know, I was very pissed off and irritated at that moment. But sir ने कहा, take time, give yourself space and rethink. Well, ending the tiresome day with a thrilling movie. Until next time.